friends, how are you? Once again, you are welcome to your own YouTube channel, Career Launcher Academy. Today, we are going to discuss our chapter, The 100 Dresses of 10th Class, written by L. Basso Easter. The chapter has two parts, 100 Dresses Part 1 and 100 Dresses Part 2. And today, we are going to discuss part 1. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है. In this chapter, the story of this chapter revolves around a girl named Wanda Petronsky. That was a Polish girl, came from Poland, Polish girl. And the two other girls in this chapter named Peggy and Maddie. Two of her classmates, ये उसकी classmates थी वांडा की. When the chapter starts, जब हमारा जो पाठ है वो शुरू होता है, it was on Monday, ये मंडे का दिन था. And Wanda did not come to school, वो स्कूल नहीं आती है. And the two other girls, they were thinking about Wanda, वो उसके बारे में सोच रही थी. And Wanda used to sit, वो बैठा करती थी in room number 13, 13 नंबर कमरे में बैठा करती थी. in the कोने में, second hand bench, on second hand row, वो पिछले से जो अगला नेक्स्ट बेंच था उस पर शी यूज्ड टू सिट, वो बैठा करती थी, जो वांडा पेट्रोन्स्की थी. और वहां पर जो दूसरे बच्चे बैठा करते थे वो कौन से बच्चे बैठा करते थे? मोस्ट ऑफ द रफ बॉयज एंड नॉट एकेडमिकली गुड, मीन्स दे वर नॉट गुड इन एजुकेशन, they don't get good marks, वो अच्छे जो मार्क्स थे वो भी प्राप्त नहीं करते थे. वो ऐसे स्टूडेंट वहां पर बैठा करते थे. And most of the times coupling of feet was there when something joking was going on in the class. यदि कोई जोक हो जाता या कोई हंसी भरी बात हो जाती तो वहां पर पैरों की बहुत ज्यादा आवाज आती थी उस हिस्से में. But Wanda was not rough and noisy. वो रफ एंड नॉइजी नहीं थी कि वो शोर करती थी या और कोई काम था वहां पर वो इसलिए बैठा करती थी. That was not the reason. The reason behind that was something, वो इस प्रकार से भी हो सकता था, that she came from Bogging Heights, वो Bogging Heights से आती थी. And her feet usually caked with mud,
उसके जो पैर थे केक विद मड, वो केक विद मड, वो उससे धूल से, मिट्टी से सने होते थे। ये भी काम हो सकता था उसके वहां पर बैठने का। दूसरा जो वांडा पेट्रोन्स्की थी, दैट हैज अ डिफरेंट नेम फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। उसकी क्लास के जो बच्चे थे उनसे उसका नाम एक अलग प्रकार का था। शी had the name of funny name, like funny name. The children of her class thought that she had a funny name, like her full name was Wanda Petronsky. उसका नाम Wanda Petronsky था। And the other children who were in her class, जो उसकी क्लास में जो दूसरे बच्चे थे, they did not have the same funny name like that of her. उसकी तरह उसका जो नाम जैसा वंडा पेट्रोन्स्की का नाम था, उसकी तरह दूसरे बच्चों का फनी नेम नहीं था। दूसरे बच्चों का नाम थॉमस, यानी कि सिंपल नेम थे, that could be announced easily, जिनको भी आसानी से पुकारा जा सकता था। And the family of Wanda Petronsky immigrated from Poland to USA, from Poland to USA। वो पोलैंड से यूएसए आया हुआ था, पोलैंड टू यूएसए। एंड देयर वर द सेम नेम्स लाइक दैट ऑफ हर। वहां पर उस जगह से जहां से वो आई थी वहां पे तो जैसे काफी सारे नाम थे, लेकिन यहाँ पर जिस एरिया में, in which area she was studying with other American students, there were not the same type of names like that of Wanda Petronsky. तो she do not have many friends। जो वांडा पेट्रोन्स्की के बहुत सारे मित्र नहीं थे। she don't have many friends, don't have many friends, उसके काफी सारे मित्र नहीं थे। but many of the girls used to talk her, लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उससे वांडा पेट्रोन्स्की से बात किया करती थी। When she stopped in the ground looking at the girls who was playing hopscotch, जो hopscotch खेल रही होती, तो उन बच्चों को जैसे वो देखने लग जाती, तो अन्य लड़कियां वो उसके साथ they started talking to Wanda Petronsky, मुझसे बातचीत करना शुरू कर देती थी। The girl Peggy and Maddie was the first one who started making fun of Wanda Petronsky। Peggy और Maddie वो लड़कियां थी जिन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक करना शुरू किया था क्लास में सबसे पहले। Peggy and Maddie started making fun of Wanda Petronsky। First of all, उन्होंने सबसे पहले उसका मजाक करना शुरू किया था। When Peggy asked Wanda, what did you say about your dresses? How many dresses you have? How many dresses you have? तो उससे पूछती कि तुम्हारे पास कितनी जो ड्रेसेस हैं उससे, वंडा से। एंड वंडा said 101, and the girls who were playing hopscotch, they stopped their playing। वो अपना खेल रोक देती थोड़े टाइम के लिए, और जब वो सुनती they seems incredible, सबके लिए अविश्वसनीय हो जाता कि एक लड़की की उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। How it can be possible, ये कैसे संभव हो सकता है। तो it is also incredulous on the other side because she always wore, जो लड़की थी वांडा पेट्रोन्स्की always wore a blue faded dress। वो हमेशा एक blue faded ड्रेस पहनती थी। not properly ironed, though it was clean but not
properly ironed, लेकिन वो properly ironed नहीं होती। It indicates that she belongs to a poor family, ये भी हमें दर्शाता है कि जो वंडा पेट्रोन्स्की है, she belonged to a poor family, कि वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। And after that she would say, वो कहती that all the 100 dresses, जो सारी की सारी जो थी line up, पंक्ति में in a closet, कि वो सारी की सारी अलमारी में एक पंक्ति में वो लगी हुई होती। And when the girls asked her again, how many shoes did you have, तुम्हारे पास कितने शूज हैं, then she would say 60 pair, कि 60 pair उसके पास 60 pair shoes are lined up, 60 pair shoes, कि उनको वो सारे 60 pair shoes are lined up, वो भी सारे के सारे पंक्ति में हैं। और जब वो लड़की वहां से चली जाती, Wanda Petronsky, when she left from there, they used to make fun of her. The girls used to make fun of Wanda Petronsky. वो सारी की सारी लड़कियां वो वंडा पेट्रोन्स्की का make fun of her, उसका मजाक उड़ाने लग जाती उसके जाने के बाद। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है that Peggy was not a good girl, कि वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, because she make fun of Wanda Petronsky, क्योंकि यहाँ पर वो वंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती है। but other side of her character is also shown here, वो यहाँ पर दर्शाया जाता है कि जो पैगी है वो Peggy saved little children from bullying, saved little children from bullies, little children or girls from bullies, वो जो दोस्त जमाने वाले बच्चे होते थे उनसे वो उनको बचाती थी। and she started crying when animals were mistreated, misbehaved, जब उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता पशुओं के साथ तो उस समय भी वो चिल्लाने लग जाती। तो और जब कोई से पूछता that is it good to make fun of Wanda Petronsky, क्या यस बात ठीक है कि तुम भाई दूसरे को तो छोटे बच्चों को तो पुलिस से बचाती हो लेकिन तुम वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक करती हो, तो उसका क्या आंसर होता? that the girl was saying that she has 100 dresses, की वो ये लड़की कह रही थी कि उसके पास 100 dresses हैं। anyone could believe, कि कोई भी उसके ऊपर anyone not could believe that the girl was saying right, कि वो लड़की है वो सच कह रही थी कि उसके पास 100 dresses हैं, क्योंकि the girl always wore a blue faded dress, क्योंकि वो हमेशा ही blue faded dress पहनती थी। तो how it could possible, ये कैसे संभव हो सकता था कि that she was telling truth, and Peggy thought that she was telling a lie, वो झूठ बोल रही थी। that was the reason, इसलिए she was teasing। and on the other side she also had a big name, Wanda Petronsky, that was the reason that they made fun of Wanda Petronsky। on the other hand her friend Peggy, और जो यहाँ पे Peggy है, Peggy was also the beautiful girl of the school, and she had pretty clothes, उसके पास सुंदर कपड़े भी थे, and she had curly hair, उसके जो curly hair भी थे, and she was sitting, वो बैठा, she used to sit on the first benches of the class where the intelligent students used to sit, और वहां पर वो intelligent student बैठा करते थे। Peggy and Maddie used to sit on the first benches, वो वहां पर बैठा करती थी। जो Maddie थी वो she did not like the thing that Peggy used to make fun of Wanda Petronsky, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी Wanda Petronsky की बारे में कि जो Peggy है she used to make fun of
अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती थी. That was not the exact reason. She do not bother about Maddie, about वांडा पेट्रोन्स्की. जो मैडी थी वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में बॉदर नहीं करती थी, वो उसकी परवाह नहीं करती थी कि इस वजह से वो इस बारे में नाराज थी. बल्कि द सेकंड रीजन वाज दैट शी हरसेल्फ वाज पुअर. वो स्वयं मैडी वाज आल्सो पुअर बट नॉट एज मच पुअर दैट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की. लेकिन वह उतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा पेट्रोन्स्की थी. अब जो वांडा ये हमारी मैडी है वो ये सोचती थी दैट शी शुड, जब वो बाद में वेटरन्स डे को जो वापस लौट रही थी, व्हेन दे वर कमिंग टू स्कूल ऑन वेडनेसडे, जब वो आ रहे थे वापस स्कूल में वेडनेसडे को, दे वर लेट फॉर स्कूल बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर वांडा, पैगी एंड मैडी. They were waiting for Wanda Petronsky that they could make fun of Wanda. उसका इंतजार कर रहे थे, but she didn't came on Wednesday also. And on that day they noticed about Wanda Petronsky. Usually when she came in school, जब वो स्कूल में आ जाती, and when she sat on her desk, nobody think about her. तो उसके बाद कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था. लेकिन अब जब वेडनेसडे को उन्होंने इसको नहीं देखा, देन दे थॉट अबाउट हर एब्सेंट. उसके एब्सेंट के बारे में वो सोचती हैं. तो जो मैडी हैं, अब उनको शी वाज हैप्पी दैट दे डिडंट मीट द गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की एंड पैगी कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की और उसका मजाक नहीं उड़ा सकी. On the other hand, she want to write a note. Maddie want to write a note. वो लिखना चाहती थी उसको पैगी को एक नोट that she should not make fun of Wanda Petronsky. It is not good. वो लिखना चाहती थी कि ये अच्छा नहीं है कि तुम उसका वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाओ. और वो सीधा उसके अंदर she did not have the courage to say things on her face. She did not have the guts to say things on her face. उसके पास ये हौसला नहीं था कि वो उसको कैश के वो बातें उसके फेस पर. and when she started writing the note, she started trembling. वो कांपना शुरू कर देती है. वो सोचने लग जाती है that she could be the next target. She could be the next target. शायद वो अगला टारगेट हो सकती है. and she imagined herself in the school campus. वो स्वयं को इमेजिन करती है स्कूल कैंपस में that the girls were circling around her and Peggy was asking to Maddie. और वो इमेजिन करती है कि जो पैगी है वो उसको मैडी को पूछ रही है from where did you buy this dress, कि तुम इस ड्रेस को कहां से लाई हो. एंड बिकॉज शी यूज्ड टू वियर, मैडी यूज्ड टू वियर द क्लोथ्स गिवन बाय टू हर बाय सम रिच गर्ल और फ्रॉम बाय हिज फैमिली. कि वो भी स्वयं जो मैडी थी वो पहना करती थी जो कपड़े थे वो पैगी के द्वारा दिए हुए. और उसके बाद जो उसकी जो माँ थी वो उनको थोड़ा सा चेंज कर देती थी by decorating those clothes. उनको थोड़ा सा सजा करके that the girls in room number 13 could not find that those clothes were belong to Peggy. उनको ना पता चले कि जो ये कपड़े हैं वो पैगी के थे. तो उसी समय वो उस विचार को रोक देती है और वो उसके लिखने के बारे में नहीं सोचती. और दूसरा वो सोचती है that Peggy was a good girl, कि जो पैगी है वो एक अच्छी लड़की है. उसको स्वयं ही she should herself stop of making fun of Wanda Petronsky. उसको स्वयं ही उसको रोक देना चाहिए making fun of Wanda Petronsky, उसका मजाक उड़ाने से. और शायद ये हो भी सकता था. अब जो वांडा ये मैडी है she was thinking about
Maddie started thinking about Wanda Petronsky. अब वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है that she came from Bogging Heights. वो वहाँ से Wanda वो Bogging Heights से आती है and one day she was saying about her blue faded dress, her blue dress, blue yellow dress, उस yellow blue dress के बारे में वो कह रही थी and about her green dress और अपनी ग्रीन ड्रेस के बारे में बता रही थी and again she started thinking about the result which her madam Miss Mason was going to announce. Miss Mason was the teacher of their class. Miss Mason was going to declare in the class or the drawing contest. अब जो drawing contest था वो क्या था? वो लड़कियों के लिए designing dresses for girls, girls के लिए वो डिजाइनिंग ड्रेसेस था and for boys designing motorboats वो for boys के लिए मोटर बोट्स को डिजाइन करने का कंपटीशन था और लड़कियों के लिए वो था and when Peggy and Maddie were going to school, they didn't wait for Wanda Petronsky as they could be late for school. उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया और क्योंकि वो उस दिन स्कूल के लिए लेट हो सकते थे and there was dazzling light rain was there and when Peggy asked that will the ma'am going to announce that result today, जो उसने उससे पूछा तो जो यहाँ पर मैडी है वो सोचती है that only Peggy could win the contest because she can draw anything. वो कुछ भी ड्रॉ कर सकती है. she was in good in sketches. वो अच्छी थी उनमें भी. तो बाद में अब when they entered, Peggy and Maddie entered the class, entered the room. जैसे वो रूम में पहुंचती है, there were brilliant and shining sketches in the class. Brilliant and shining sketches. वहां पर brilliant और जो shining sketches थे क्लास में. Brilliant and sketches drawing. Brilliant shining drawings were there. Of different drawings were there. Of different dresses के वहां पर ड्रेसेस के विभिन्न अच्छे सुंदर सुंदर स्केचेस बनाए हुए थे. ड्राइंग्स वर देयर एंड आफ्टर दैट व्हेन द क्लास assembled, Miss Mason announced the result that Jack Bagels was the winner of the boys. वो लड़कियों के तरफ से विनर था और जो क्लास में वहां पे मिस मैसन ने अनाउंस किया that the girls only डिपॉजिट देयर स्केचेस 1 और 2, केवल 2 या 1-2 जो स्केचेस थे वो उन्होंने डिपॉजिट कराए थे. और द रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ ए गर्ल हु ड्रू 100 स्केचेस. एक लड़की ने जो लगभग 100 के लगभग स्केचेस वो किए थे. एंड द नेम और जो उसके प्रत्येक जो ड्राइंग थी दैट बी वर्दी ऑफ गेटिंग ए प्राइज. वो प्रत्येक जो ड्रेस थी वो जो ड्राइंग थी उसकी जो उसने बनाई थी वो वर्दी थी प्राइज गेटिंग के. वो कोई भी उसमें से सिलेक्ट यदि की जाए दैट कुड वन द प्राइज, वो जीत सकती थी. एंड द नेम ऑफ द गर्ल विनर वाज वंडा पेट्रोन्स्की. और जो लड़की थी उसका नाम वंडा पेट्रोन्स्की था जिसने की लगभग 100 जो डिजाइन थे ड्राइंग्स के वो विभिन्न ड्रेसेस के वो बनाए थे. एंड आफ्टर दैट द मैम Miss Mason instructed the class to go there in the room and to look out on the drawings और उनको वो देखे. And after that Peggy and Maddie went to the room and they started looking on the drawings made by Wanda Petronsky and they were very much surprised to see about the drawings. Each drawings were in different size, in different color
तो जो ड्राइंग बनाई थी उसने प्रत्येक अलग अलग प्रकार के डिजाइन थे, उसमें अलग अलग रंगों के थे। दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर सरप्राइज, वो सरप्राइज आ जाते हैं, हैरान आ जाते हैं देख करके इसको कि दे वर मेड बाय वांडा पेट्रोन्स्की, और वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। Thus we can see that the first part, the 100 dresses written by Albasor Easter has been completed। ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बारे में कि जो 100 ड्रेसेस के बारे में है कि वांडा पेट्रोन्स्की मैन 100 ड्राइंग्स उसने जो बनाई है, और आगे इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसमें और ज्यादा हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में कि what happened to Wanda Petronsky, why did not she used to come to school, कि वो स्कूल में क्यों नहीं आया करती थी, what was the reason, this thing we will discuss in our next video। I hope you like the video and you understand this video। आप आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो पूरी की पूरी समरी है लेसन की वो समझ में आ गई होगी। तो आप इस हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा जो चैनल है द करियर लॉन्चर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।